Dugal. I'm from the Civil Engineering Department, faculty here, and I've been actually, in addition to my teaching assignment, I've been very intimately associated with the road designing, construction, quality control, and rehabilitation works in Chandigarh, Panchkula, Mohali, in some parts of Haryana, Punjab, MES, and Airport Authority of India. So what we are going to talk about is, from the practical aspect of that, not simply the theoretical aspect of that, because theory is slightly easy and we can read about and reproduce in this easy manner, but in civil engineering we all know that putting the things to practice with the desired quality is not a really easy task. And when each of the project has got its own specific features, so we all know that no product in the civil engineering is duplicated in the similar manner. Just like in a mechanical, you have, if you have a car production, so you are going to produce the, in one lot, if you are producing 400 cars, so there's more than 99.9% possibility that all these cars will be alike, but it doesn't happen so in the civil engineering. So you have to treat, you have to conceive each product, each of the project as per the requirement, and then work out the methodologies to implement it, and also side by side methods to exercise good control on this. So thereby this puts civil engineering, a little bit more competitive, more challenging and tough compared to some other project activities. So there we are going to share some of the experiences as may be required during the program about our association in such kind of projects. All right, so with this brief introduction to and conversation with all the connected centers, we now start the academic program and the session 1 today, which is on the type of highway construction. I'm going to take up. Before we really go into detail, let us get some briefing about it. What really a road is, everyone knows that what road is, but most of us think the road is something like a national highway or a street or a city road or a expressway, and we may not be considering some other passages like a road. So roads are defined as the routes or paths. When I say paths, the paths may not be very well planned or designed or constructed, that begin at one destination and lead to another. So obviously the objective of road is to get connectivity between the two centers. This is what we perceive as a road, but as I say that the smaller portions which may be of lesser width are not really well constructed, they also become part of the road. In the road structure which we have normally, we have uh, basically 5 components broadly which are seen to us. One is the carriageway. The carriageway is actually the term which we refer to that portion of the road which carries the traffic, which is supposed to carry the traffic. So that is the main width of the road. Then pavement, we come across a term pavement. Pavement is the term which we use for the structural part or of the road structure. So whatever you are going to construct to meet that desired function is called a pavement. Then we have the third term, curb. Curb is a side protection which you see that it could be of a concrete or some other material, and you will see this more in the city roads or smaller roads or roads which are passing through confined areas. So the objective of curve would be to give a very clear demarcation that this is where the road ends, or the objective of curve could be to give protection to the road from maybe a drainage part, or that it not be being traversed by some undesirable issues.
So curb is necessary, and curb is also very necessary when you are going to do the construction with a paver block. So you need to contain that construction, otherwise the paver block construction will not hold good. Curb can be required, to demarcate the median, which is the dividing. If you have a two-lane, if you have a multi-lane highway and you have got a separator, so curb is necessary to demarcate the separation between the two sections. Then we have the shoulder. Shoulder is a kind of extension to the carriageway, and it is not really as strong as a carriageway, but it is meant for two reasons. One is that it is meant to give you an access during the emergency or during other requirement. For example, when you're going on a highway and you want to just stop for certain reason, the vehicle gets a snag, or maybe the family has a kid and need to just stop for certain reason. So you can just go on the side, park the vehicle without actually obstructing the traffic. That is the objective, that without obstructing the traffic. The second is the psychological safety aspect, because once you are moving on a road, you may be accidentally or suddenly may be required to divert and cross the edges of the limit. So you should have some additional space where the vehicle can move in the case of any emergency or such requirement without meeting an accident. So shoulder, but because shoulder is not traversed every time, so shoulder need not be as strong as a pavement or a carriageway is. Okay. Then we have the sidewalks or footpaths, which are necessary maybe on a bridge or during on a city traffic, to give a very well defined passage for the pedestrian movement and also give them protection from the main traffic. So that are the kind of 5 components that despite we have in a road structure we can see. Now I'm going to come to what you have, just a brief review. You already have studied that. The major types of the payments. Now we are going to talk about the payments. The major type of payments are flexible and rigid payments. We all know it very well. And but now we also have a kind of composite payments, which are not actually conceived in the beginning, but during the lifespan they can become composite. How they can become composite, we'll explain a little later. What really is a flexible payment and what is a rigid payment? This is what actually you see is a flexible payment. We know that during the construction, it's a kind of bituminous construction we see. And what here you see in the figure is the carriageway. The carriageway is what really is the paved portion where the vehicles will be moving. Okay, now let us see a basic structure of a flexible pavement. And before I explain you that, you here see a 3-layered figure, and we have showing you a sub-base course at the bottom, then a base course and a surface course, and below the sub-base course is again a brown shading. Now that is nothing but a soil subgrade, existing soil subgrade, on which these layers are to be placed. So that form the basic structure. We'll see that why we need different layers, what is the difference between these 3 layers, and what should be the thicknesses of them for different conditions. Now here, I'm not sure how clear that figure must be because when it's being transmitted. You can see on the left side is a 3-layer structure where we're showing a natural subgrade at the bottom. This is the natural subgrade. Then we have compacted subgrade, then base layer and a surface layer. This is actually the
type of structure which has been followed previously earlier and empirical. तो अगर आप कहीं एक ड्वेलिंग एरिया में है, जैसे रेजिडेंशियल एरिया है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और वट एवर राजस्थान और ग्रेटर नोएडा, तो जब वो कोई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करते हैं तो प्लॉट वगैरह काट देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि in order to facilitate the construction to be taking place and there are some limitation of the funds in the beginning, तो वो एक बहुत डिजाइन रोड्स नहीं बनाते हैं, वेल डिजाइन रोड्स नहीं बनाते, वो एक एम्पिरिकल बेसिस पे बनाते हैं। तो नीचे जो नेचुरल सबग्रेड है उसके ऊपर जो मिट्टी है उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, तो कॉम्पैक्टेड सबग्रेड, और उसके ऊपर एक बेस लेयर लगा दी स्टोन मेटल का, जिसको हम बोलते हैं स्टोन मेटल लेयर, और उसके ऊपर ही डायरेक्टली फिर वो सरफेस लेयर लगा देते हैं, जिसको प्री मिक्स कारपेट या कुछ भी दैट काइंड ऑफ 25 mm और 20 mm और 25 mm। तो ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस रही है, अभी भी बहुत जगह वो कर लेते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तो प्रॉपर डिजाइनिंग शुरू हो गया है। सो देयर बाय, तो ये जो एक स्ट्रक्चर आपका डेवलप हो जाता है, तो दे डोंट एक्सपेक्ट दिस स्ट्रक्चर टू लास्ट वेरी लॉन्ग। इनका क्योंकि अभी और डेवलपमेंट होनी है, वहां पे हैवी व्हीकल्स आएंगे, स्टील आएगा, सीमेंट आएगा, बजरी आएगी, सब बड़े बड़े ट्रक आएंगे, तो उनको है भी सड़कें तो डैमेज होनी है। तो जब तक ये कंस्ट्रक्शन होनी है तो हम अपनी सड़कें फुल डेप्थ ना बनाएं, क्योंकि वो डैमेज होनी है। जब ये हो जाएगी फिर इनको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। तो ये इसलिए 3 लेयर्ड या 2 लेयर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो सबग्रेड है वो तो बॉटम एग्जिस्टिंग सॉइल है, तो उसके ऊपर एक मेटल जिसे कहते हैं ब्रोकन स्टोन वो डाल दिया, और उसके ऊपर एक बिटुमिनस लेयर डाल दी 20 या 25 mm की, तो वो कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। But that is not really the right kind of approach. So what you need to have is what we are showing you on the right hand side. The natural subgrade is one. Natural subgrade means जो existing soil है वही, that is a natural subgrade. Then you have compacted subgrade. Then we have a sub-base layer, then base coarse layer and a surface coarse layer. So this is a proper design, but still more proper is what I am going to show you here. Now you see here in the bottom is the subgrade. So the subgrade is seen over there. Then we are showing you a membrane. The membrane is not necessarily used in all type of them, but the membrane is it could be a geotextile membrane or other thing. When you need to strengthen the or protect the subgrade, अगर weak subgrade है तो आपको उसको protection करनी पड़ेगी, तो वहां पर एक membrane लगा सकते हैं. Then sub base and then base courses. There are 2 base courses. One is a base course and second is a binder course. Now you may ask, why do we need the 2 base courses? जो नीचे का बेस कोर्स है वो ग्रैनुलर बेस कोर्स है, ग्रैनुलर मटेरियल का, और जो बाइंडर कोर्स है वो बेस कोर्स है यूजिंग ए बाइंडर like a bitumen. So that is why it is called a binder course. And then you have a surface course. अब binder course की जरूरत ये है कि binder course is required to provide a good base for the surface layer which is going to be a bituminous course. Now all these designs, whenever we are going to design any new pavement, we design in the manner we are showing you here. So I am going to have a compacted subgrade, I am going to have a sub base, then a granular base, and then a bituminous base, or which is also termed as a binder course, and then finally a surface course. तो यानी कि जो ऊपर आप बिटुमिनस लेयर देख रहे हैं सरफेस की, उसके नीचे एक बेस कोर्स लेयर बिटुमिनस मटेरियल की ही लगी होनी चाहिए. So then it only forms a proper flexible pavement, right? Okay.
Now let us see what really is the difference between a rigid payment and a flexible payment essentially. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की मैंने आपको ये अभी बताया कंपोजिशन क्या है. रिजिड पेमेंट में आपको खाली एक लेयर चाहिए सरफेस कोर्स के नीचे. सबसे पहले तो कॉम्पैक्टेड सबग्रेड जैसे होना चाहिए, सबग्रेड को कॉम्पैक्ट किया, उसके ऊपर हमें एक बेस कोर्स लगाना है. सब बेस और बेस सिंगल ही है, चाहे हम उसको बेस कहें या सब बेस कहें, दैट इज ओनली वन. So I can have a base course and then finally a surface course. The surface course is in form of a concrete slab. Now what is the difference between a concrete slab on a road and concrete slab? स्ट्रक्चर की कंक्रीट स्लैब से हम सब वाकिफ हैं, हम जानते हैं. तो उसकी कंक्रीट स्लैब है तो उसका बेंडिंग मोमेंट है, वो सारे एक्शन शेयर फोर्सेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हम एनालिसिस करके उसको डिजाइन किया जाता है. वो जो स्लैब है actually that is resting, it could be resting on a beam, it could be resting on a wall, or it could be resting on a column, right? So the slab is transmitting this load to a beam or a column or even a wall, right? And it is not supported from the center, it's only supported from the edges. But the concrete slab in the road is getting support throughout its area. जितनी स्लैब है उतना ही उसका सपोर्ट एरिया है, वट एवर इज द साइज ऑफ स्लैब. ओके, सो देयर बाय you need to provide an adequate support to the slab. लेकिन जो स्ट्रक्चरल स्लैब है उसमें हम नीचे सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेंथ तो उसकी प्रॉपर है. तो वो स्ट्रेंथ के लिए तो अपने बेस के ऊपर डिपेंड नहीं है, नीचे तो हवा ही है. इफ यू टेक द स्ट्रेंथ ऑफ द स्लैब तो स्लैब की स्ट्रेंथ इंटैक्ट है. तो यहाँ पे हमें दैट इज वाई वी रियली डू नॉट नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उसके ऊपर लोड इतना नहीं आना है. लोड जो है सारा कंक्रीट स्लैब ने बियर करना है और वो रिजिड है, डिफ्लेक्शन उसकी नेग्लिजिबल है. अगर हम रिजिड स्लैब का, नाउ लेट अस सी दैट व्हाट रियली हैपेंस व्हेन द लोडिंग कम्स on a rigid slab. You can see that a large area is being covered. तो सेंटर में थोड़ा ज्यादा है जहाँ पे लोड एक्चुअली प्लेस हो रहा है, but the load is being distributed throughout the slab width. You can see that, right? तो ये आपको ये फिगर से क्लियर है. But in flexible payment जो हमारा लोड है directly under the टायर और द व्हील, वो नीचे की लेयर तक जा रहा है. सो यू कैन सी द स्ट्रेसेस, बट व्हाट रियली इज हैपनिंग, जो सबसे ऊपर की लेयर है उसमें स्ट्रेस ज्यादा है. दैट लेयर विल एब्जॉर्ब सम स्ट्रेस एंड देन ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट लेयर. तो नेक्स्ट लेयर में स्ट्रेस कम हो जाएगा. वो लेयर कुछ एब्जॉर्ब करेगी तो नेक्स्ट को ट्रांसमिट करेगी. लाइकवाइज when it reaches the subgrade, the stress is drastically reduced. So that is why we take this advantage of this, and that is why जो हम layer place करते हैं वो successively of lower strength place करते हैं below the surface course. यानी जो सबसे नीचे की layer है वो relatively सबसे weak है compared to the top layers. लेकिन ये जब रोड शुरू में बनी थी, आपने पढ़ा है रोमन रोड, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और वो, तो तब ये कंसेप्ट उल्टा था. तो तब ये सोचा जाता था कि क्योंकि सारा भार तो नीचे आना है तो नीचे वो पत्थर लगाया करते थे, बड़े बड़े पत्थर लगा के फिर वो रोड बनाते थे. सो इट वाज नॉट, द इंजीनियरिंग वाज नॉट दैट अंडरस्टूड. सो नीचे बड़े पत्थर लगा के, ये तो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. तो but now you know that we don't need actually a stone foundation, we need just a good compacted soil subgrade. Okay, so
Okay, we have covered this, and this is what actually is the composition of the subgrade, subbase, base, granular, bituminous, and finally surface core. Okay, now this is जब आपने एक बारी रोड बना दी तो अब रोड वो हमेशा के लिए चलने वाली नहीं है. मतलब flexible payment, they have got a limited life, say maybe 5 years or 8 years depending upon how you will construct और क्या उसका traffic है, क्या उसकी wear tear है, but they are not going to last for long compared to the rigid payments. Rigid payments have slightly more expected life, 20 to 30 years तक आप कर सकते हो. तो जब आपकी पेमेंट खराब हो जाएगी तो उसके ऊपर आप ओवरले लगाना जरूरी है. तो ओवरले लगाने के दो रीजन हो सकते हैं. एक तो आपकी उसकी सरफेस क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गई है, घिस गई है, थोड़ा एग्रीगेट निकलने शुरू हो गए हैं, क्रैक्स आ गए हैं, मे बी वियर एंड टीयर और यूसेज या कुछ लोकलाइज प्रॉब्लम आने से. तो आपको सरफेस क्वालिटी उसको रिन्यूअल कहते हैं. दैट इज वी यूज द टर्म एज ए रिन्यूअल ऑफ सरफेस. सेकेंड रीजन कुड बी कि बहुत बार क्या होता है, आपने जब पहले रोड बनाई थी तो वहां ट्रैफिक कम था, रोड बनने के बाद उसके पास ट्रैफिक ज्यादा हो गया. तो ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि रोड आपने अपने हिसाब से ठीक बनाया लेकिन वो उसकी कनेक्टिविटी ऐसी थी कि कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट होके आ गया. तो अब रोड जो आपने, जब हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें दो चीजें मेन होती हैं, वी नो दैट. एक तो होता है सॉइल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है ट्रैफिक. तो सॉइल प्रॉपर्टीज में उसकी स्ट्रेंथ लेके और ट्रैफिक हम कितना है उसके हिसाब से हम क्रस्ट डिजाइन करते हैं, डिफरेंट लेयर की थिकनेसेस. तो अगर आपका यानी कि ट्रैफिक एंटिसिपेशन शुरू में कम है और बाद में बढ़ गया तो आपका वो जो डिजाइन है वो इनसफिशिएंट हो गया. सो देन वी से इट नीड्स स्ट्रेंथनिंग. तो उसकी रोड की डैमेज सडनली हो जाएगी. तो ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं. तो उस केस में, ऐसे केस में हमें एक ओवरले लगाना होता है. तो ओवरले जब लगाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, नीचे आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है पेमेंट और उसके ऊपर फिर है ओवरले. नाउ इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, मान लीजिए आपने 25 साल हो गए आपकी रोड पहले बनी थी, तो उसके ऊपर बहुत सारे ओवरले हो जाएंगे. उस सो उसका कैसे बिहेवियर होगा, क्या होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एन renewed road or strengthened road that you have an overlay. ये लेयर्स मैं आपको रिकैप्चुलेट कर रहा हूं. जो बॉटम लेयर है उसको हम बोलते हैं सबग्रेड, और सबग्रेड से जो रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड अर्थवर्क. Then we have a sub base which is again of granular material. Then we have a granular base, then bituminous base, bituminous surface course, और जो लास्ट में है टैग कोट एंड प्राइम कोट, दे आर एक्चुअली द थिन एप्लीकेशन ऑफ बाइंडर, कि ये जो हम लेयर लगाते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग रहे. देखिए जैसे फैमिली में 5 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं और सब अलग अलग है तो फैमिली में स्ट्रेंथ नहीं आती. लेकिन अगर उसमें आपस में बॉन्डिंग है तो फैमिली में स्ट्रेंथ आती है. सो दे कैन विदस्टैंड द ऑड्स या डिफिकल्टीज को वो विदस्टैंड कर सकते हैं. तो ऐसे ही रोड में जो डिफरेंट लेयर है, अगर उसमें बॉन्डिंग है तो वो स्ट्रेसेस को प्रॉपरली विदस्टैंड कर पाएंगे जो व्हीकल स्ट्रेसेस आएंगे. अगर उनमें बॉन्डिंग नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट दी स्ट्रेसेस. तो ये जो टैग कोट और प्राइम कोट हैं, दे आर वेरी थिन एप्लीकेशंस ऑफ द बाइंडर, ताकि जो नीचे की लेयर लगी हुई है और जो ऊपर आप उसके ऊपर लेयर लगा रहे हो उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग आनी चाहिए, तभी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा. नहीं तो लेयर टू लेयर स्लिपेज होने का खतरा रहता है, स्लाइडिंग या स्लिपेज होने का खतरा रहता है. राइट. सो दीज आर, so that's, we don't term that as the part of the carriageway, but they are just simple applications.
how do actually flexible pavement distribute? They distribute the load through the aggregate interlock. इंटरलॉकिंग का क्या पर्पस होता है कि जो आपका एग्रीगेट्स इंटरलॉक्ड हैं, तो टॉप एग्रीगेट के ऊपर जो लोड आता है उसके नीचे 2-3 एग्रीगेट के साथ उसका कांटेक्ट है, सो इंटरलॉकिंग से वो लोड वो 2 या 3 एग्रीगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्रीगेट नीचे वाला वो फर्दर इसी तरह से, सो दैट इज वाई जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रेपीजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। जैसे आपने सॉइल में देखा है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसे ट्रेपीजॉइडल, यानी ऊपर एरिया कम होगा और नीचे एरिया ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाई द स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड टू द बॉटम। तो इनकी जो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी इंटरलॉकिंग के ऊपर करेगी, पार्टिकल फ्रिक्शन एंड कोहेजन फॉर स्टेबिलिटी। ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। सो just some information again structurally how it is important. Distribute loading stresses to the soil at magnitude that will not shear or distort the soil. तो जो लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट होके सॉइल सबग्रेड तक पहुंचा वो इतना होना चाहिए कि उसके अंदर अननेसेसरी शेयरिंग ना कॉज करे और डिस्टॉर्शन ऑफ सॉइल मींस कि जो उसकी शेप है उसको वो चेंज ना करे। बहुत बार आपने देखा होगा कि रोड्स के ऊपर अंड्यूलेशंस होती हैं, मतलब रोड्स में फेलियर नहीं होगा, आपका सरफेस ठीक है बट वो अंड्यूलेशन इस टाइप का झूला टाइप आपको फीलिंग आएगी हल्की हल्की जब आप गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर। तो सरफेस पे क्रैक भी नहीं है, सब कुछ इंटैक्ट है। तो उसका रीजन मोस्टली यही होता है कि जो नीचे आपकी सब ग्रेड है सॉइल वो उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई है। उसके क्या रीजन है विल सी लिटिल लेटर। Pavement which reflects deformation of subgrade and the subsequent layer on the surface. तो जो नीचे आपकी ये अंड्यूलेशंस है वेवीनेस प्रोड्यूस होती है सबग्रेड में बिकॉज ऑफ insufficient strength और कोई और भी रीजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, the same gets reflected on the surface course. I have already explained that so each layer should be arranged in order of descending order, यानी कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी विद हाईएस्ट लोड बेयरिंग कैपेसिटी एट द और मोस्ट एक्सपेंसिव, जो जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो एक्सपेंसिव भी होगा तो वो टॉप पे होगा, और लोएस्ट लोड बेयरिंग कैपेसिटी मटेरियल एंड लीस्ट एक्सपेंसिव एट द बॉटम। वी हैव डिस्कस्ड दैट जस्ट टू रीइंफोर्स दैट। ओके नाउ सी दैट ये जो लेयर है इनका काम क्या क्या है, और देन वील कम टू दी टाइप्स के कौन सी लेयर में कौन से मटेरियल यूज हो सकते हैं। सरफेस कोर्स इज द टॉप लेयर एंड द लेयर दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द ट्रैफिक। सो इट्स समथिंग लाइक द जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे क्लास का सीआर होता है तो टीचर के साथ वो रिप्रेजेंट करता है, तो पूरी जो पेमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सरफेस कोर्स करता है। अगर पेमेंट की किसी भी लेयर में प्रॉब्लम है सबग्रेड पे है तो वो भी सरफेस लेयर पे ही रिफ्लेक्ट होनी, इंक्लूडिंग इट्स ओन। जो ट्रैफिक डायरेक्ट लोड आना है वो सरफेस कोर्स के ऊपर आना है, उसने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो ट्रैफिक की वियर एंड टीयर है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो सिर्फ सरफेस कोर्स के ऊपर है बाई एब्रेशन, वो बाकी लेयर्स के ऊपर नहीं है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बाकी लेयर्स को, लोड सबके ऊपर आना है, ये हमने अभी डिस्कस किया, नीचे वाली पे कम आएगा ऊपर वाली पे ज्यादा आएगा, ये है। लेकिन जो एब्रेशन है वो सिर्फ सरफेस कोर्स पे आएगा। उसके बाद जो आपके टेम्परेचर चेंजेस हैं या जो इफेक्ट ऑफ रेनफॉल है वो भी आपकी सरफेस लेयर ने ही बियर करना है सबसे पहले, and then these effects can be transmitted to the other layers. So this means that surface course material has to have a very high quality and good properties. The second is the base course, which is directly below.
and finally we have sub base. We have this. So it has to provide it provides the characteristics such as friction. जो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वगैरह हमने कैलकुलेट किया है वो बेस्ड ऑन फ्रिक्शन है. सो टायर और उसका फ्रिक्शन. सो फॉर सेफ्टी इट इज इम्पोर्टेंट. अगर वो पॉलिशिंग हो जाएगा रगड़ने के बाद, सो इट कैन बिकम स्मूथ. इट आल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉइस कंट्रोल. अगर आप कभी एक हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं तो जो बिल्कुल नई रोड बनी होती है उसके ऊपर जाती है गाड़ी, तो कैबिन नॉइस मतलब अंदर से आपको नॉइस कम होगा. जैसे ही आप थोड़ा पुरानी रोड पे ऊपर आ जाओगे तो वो नॉइस आपका गाड़ी का बढ़ जाता है. तो ये एक अहम इशू है फॉर द कंफर्ट ऑफ के द गुड फ्लेक्सिबल पेमेंट विल आल्सो प्रोवाइड यू a noise control. So a noise is a measure of indirectly a measure of the deterioration that has taken place in the flexible pavement. Then it is also responsible largely for showing the rut resistance, shoving resistance and drainage. So ruts and shoving are defects that take place. And drainage. ड्रेनेज से इसका क्या लिंक है? सरफेस कोर्स का ड्रेनेज से क्या लिंक है? एनीबॉडी कैन? हाउ ड्रेनेज इज लिंक्ड और relevant or important for the surface course? Yes, we provide a camber. Now why do we provide a camber? Because we want the water. Camber is a cross slope, यानी कि आप जब भी कोई भी रेनफॉल का वाटर आएगा तो ये ड्रेन ऑफ होना चाहिए. वो इसलिए जरूरी है कि जो वाटर है उसकी प्रेजेंस, प्रोलॉन्ग प्रेजेंस जो है वो एग्रीगेट और बिटुमन यानी जो बाइंडर है उसकी बाइंडिंग को वो डिसलॉज कर देती है, यानी उसके बॉन्ड को वीक कर देती है. तो जब वो वीक हो जाता है तो एग्रीगेट जो है वो अपनी जगह से इजीली निकल जाता है. क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो बिटुमिनस पेमेंट है, एग्रीगेट इज लूज मटेरियल. वो इंटरलॉक जितना मर्जी कर लो, लेकिन अगर उसकी बॉन्डिंग करने के लिए, एडहेशन के लिए हम बिटुमन यूज करते हैं. तो ये जरूरी है कि उसमें वाटर जो है जितनी क्विकली ड्रेन किया जाए वो बेटर है. सेकेंडली, अगर वो वाटर ड्रेन नहीं होगा, उसके ऊपर रहेगा, तो इट कैन आल्सो ट्रेवल डाउन टू द डाउन लेयर्स. तो जो ओल्ड पेमेंट हो जाती हैं उसमें यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वाइड क्रैक हो गए तो ग्रेजुअली वाटर उसके अंदर पड़ा रहेगा, तो इट कैन कॉज. सो देयरफॉर ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सरफेस कोर्स की जो रोल है वो एक बड़ा भाई है बाकी लेयर्स के लिए, तो वो बचा के रखता है उनको. अगर वो खुद ही कमजोर हो गया तो वो दूसरे वाले भी जल्दी से ठुस हो जाएंगे. सो इज ए बिग गाय. So yes, it prevents the entrance of excessive quantities of surface water into the underlying base, sub-base and subgrade. How it can reach subgrade? क्योंकि जो हमने बेस, नीचे के बेस कोर्स हैं, ग्रेनुलर बेस एंड सब बेस, दे आर फ्री ड्रेनिंग मटेरियल. तो अगर ऊपर से कोई मॉइस्चर उसमें जाएंगी तो वो बहुत माइनर सा उसमें रहेगा, बाकी सब वो नीचे भेज देंगी. So this means finally the moisture will go to the subgrade, and which is very damaging. So surface course is also termed as the wearing course, and it can bear the traffic and it can be removed and replaced. अब दो चीजें हैं, या तो उसको हम रिमूव या रिप्लेस कर सकते हैं या उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. Then we have binder course, which is immediately below the surface course. इसका काम है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये पेमेंट
में जो बिटुमिनस लेयर है ये उसका अहम पोर्शन है। सरफेस कोर्स की थिकनेस कम होगी, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, राइट। आप कोई भी पेमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, द बाइंडर कोर्स thickness is always more than the surface course. So this means that more load distribution is done by this layer. Surface course is transmitting the load, so greater distribution is taken by this binder course. Then below that, as he said, is a base course. So base course is usually constructed of aggregates, broken aggregates, and they will not be damaged by moisture or frost action. तो एग्रीगेट इज अ वेरी गुड मटेरियल, और मॉइस्चर का उसके ऊपर एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना कंपेयर टू द सॉइल, राइट। एंड दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ, लेकिन अगर आपको बहुत हाई स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है which normally takes place in the airport pavement, so then you need to have stabilized aggregates. तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये जितनी लेयर्स हैं हमारे पास, जो हमने की सब बेस, सरफेस कोर्स, बेस कोर्सेज वगैरह वगैरह, तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं कि अगर मैंने बेस कोर्स लगाना है तो कौन से मटेरियल का लगा सकता हूँ, अगर सरफेस कोर्स लगाना है तो कौन सा मटेरियल लगा सकते हैं। तो एक तो हमें ये जानना जरूरी है कि विच आर द चॉइसेस अवेलेबल टू मी। दूसरा, एज एन इंजीनियर आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो वैरायटी है इसमें से कौन सी सूटेबल है मेरे लिए। अभी आप शादी पे गए तो 4 तरह का खाना लगा हुआ है, पंजाबी, थाई, राजस्थानी, राइट। तो जिसको ज्यादा मिर्ची वाला एडजस्ट कर लेता है वो तो राजस्थानी खा लेगा। तो आपको पता है कि आपकी सूटेबिलिटी क्या है, आपको अपने पेट का पता है, तो मेरे लिए ये सूटेबल है। So suitability is based on your requirement, your conditions. तो conditions क्या है? Conditions, environmental conditions, traffic conditions, usage of the road, वो सारा देखते हुए soil condition, drainage conditions, so many factors you need to know, and then you need to decide which is suitable. तो multiple choices बहुत बारी होता है कि जैसे मैंने बताया मल्टीपल चॉइसेस, तो ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन हाउ टू मेक ए चॉइस ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो यू मे अराइव एट ए रॉन्ग चॉइस। और इससे रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे इस प्रोग्राम में। तो पहले हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रोड कैटेगरी सबको मालूम है, हमने पढ़ा है एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, देन यू हैव मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन विलेज रोड्स, राइट। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और अगर हम थोड़ा सा और रिमोट एरिया में चले जाएं तो रूरल रोड्स में फर्दर कैटेगराइजेशन हो जाता है, जिसमें अब PMGSY के अंडर उन्होंने ये कहा कि जो भी गांव की पॉपुलेशन 200 से भी ऊपर है या कुछ ऐसा, तो उनको कनेक्टिविटी देनी जरूरी है, राइट। सो एनी विलेज। लेकिन अगर आप 200 की पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, और तो 200 की पॉपुलेशन में उनके पास ना तो ट्रैक्टर है, ना ट्रॉली है, ना कार है, खाली उन्होंने पैदल आना है, साइकिल हो सकता है किसी के पास स्कूटर है, या कभी कुछ सामान भेजने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई छोटा मोटा टेम्पो एक आध बार कभी वो चला जाएगा। तो ऐसी जगह के लिए क्या हमें एक रेगुलर ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमने बताया बिटुमिनस पेमेंट बनाना, तो क्या ये इकोनॉमिकली जायज है? नहीं है, राइट। दैट मच वी डोंट नीड। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो आपका सरफेस है वो जरूरी नहीं है कि बिटुमिनस हो, it can be other than bituminous depending upon 2 factors. One is your requirement, second is the funding. कई बार ऐसा होता है कि फंड्स आपके पास पर्टिकुलरली जहां गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आते हैं तो उनका 3 ईयर फंडिंग होती है या 5 ईयर तक फंडिंग रहता है,
भी आपको पहले साल में इतना मिल जाएगा, सेकंड में इतना। तो उसमें क्या करते हैं, फिर स्टेज कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। स्टेज कंस्ट्रक्शन में आपने थोड़ी कंस्ट्रक्शन लेयर एक साल में कर ली, नेक्स्ट ईयर फंडिंग आई तो और ऐड कर दिया। तो मान लीजिए आप स्टेज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी है जब आपने शुरू किया तो आपका खाली एक सबग्रेड ही लगा हुआ है। ओके, so subgrade itself is then going to be used as a surface course for some time. ओके, नेक्स्ट ईयर आपने उसके ऊपर सब बेस लगा दिया ग्रैनुलर, उसको फिनिश कर दिया तो ग्रैनुलर सब बेस की फिनिश हो गई। थर्ड ईयर आपने कुछ और वेट मिक्स मैकेडम या पत्थर लगा दिया, सो लाइक दैट। तो बहुत बार ऐसा होता है जो सरफेस कोर्स कैन बी डिफरेंट देन द पेव्ड बिटुमिनस लेयर। तो उसके बेस के ऊपर हम ये 5 कैटेगरी आपको बताते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है अर्थ रोड एंड ग्रेवल रोड। अर्थ रोड एंड ग्रेवल रोड। सेकेंड इज सॉइल स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज्ड सॉइल मतलब सॉइल को आपने थोड़ा इंप्रूव करके बेटर कर दिया है, सॉइल स्टेबलाइज्ड। थर्ड इज वाटर बाउंड मैकेडम एंड फोर्थ इज bituminous or black top. Black top is very common word, particularly in US and other countries, European countries. They call them as a white topping or black topping. The white topping is referred to the concrete roads and black topping is referred to the bituminous roads. So, and fifth is a cement concrete road. So, any one of these can be a motorable surface. आप समझ रहे हैं, ये उसका सरफेस कोर्स हो सकता है। यानी अगर मैं अर्थ रोड और ग्रेवल रोड की बात करता हूं तो उसका सरफेस कोर्स ही या तो ग्रेवल और अर्थ का है। स्टेबलाइज का मतलब सॉइल स्टेबलाइज मतलब आपने सॉइल को स्टेबलाइज कर दिया और उसके ऊपर ट्रैफिक ओपन कर दिया। तो ये 5 टाइप्स की हैं। Now we see that which are the different materials which can be used and suitable for different layers. First is a granular subbase. First is granular subbase. Then comes gravel, soil, aggregate, base oblique surface course. इसका मतलब ये है कि ये ग्रेवल या सॉइल एग्रीगेट का मिक्सचर है और इसको आप एज ए बेस कोर्स और सरफेस कोर्स यूज कर सकते हैं। थर्ड इज क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस और बेस कोर्स। व्हाट इज क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट? जो आपका डिमोलिशन वेस्ट होता है, राइट, यू कैन सी बहुत रेनोवेशन वर्क्स हैं या रिकंस्ट्रक्शन वर्क्स में पुरानी कंक्रीट को डिसमेंटल करके नया वर्क्स किया है। तो जो ब्रोकन कंक्रीट है, इट इज जस्ट लाइक एग्रीगेट. It can be as good as an aggregate. Slightly it could be inferior to that, but you can use that same material, crushed cement concrete, and prepare a sub base or base using this material. Then we can have lime treated soil subgrade or sub base. Lime treated, अगर आप सॉइल के अंदर लाइम मिक्स कर देते हैं और वो जो फिर बनेगा उस कंपैक्ट करके, इधर इट कैन बी यूज्ड एज ए सब ग्रेड. सब ग्रेड मतलब आपकी सॉइल वीक थी तो हमने उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लिया, स्टेबलाइजेशन कर दिया लाइम ऐड करके, तो उसको बैज सब ग्रेड यूज कर लिया. लेकिन वो सॉइल अच्छी है मान लीजिए, उसको अगर आपने स्टेबलाइज कर दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी. वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो सब बेस का काम कर सकेगी. so then we say it can be used as a sub base. तो वो डिपेंड करता है what have you done to that soil, कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट की है. Similar thing done with the cement is termed as a cement treated soil subgrade or sub base.
Then we have one of the most popular construction that is called water-bound macadam. Water-bound macadam, WBM, that is popularly called. Then we have wet mix macadam. तो जो वाटर बाउंड मैकेडम है इट कैन बी यूज्ड एज ए बेस कोर्स, और अभी हमने ये भी कहा था कि एज सरफेस कोर्स अगर जो स्टेज कंस्ट्रक्शन में करते हैं या जो विलेज रोड्स में है, सो WBM डाल के उसको खोल दो तो वो भी एक काम कर सकता है उसको फिनिश देने के लिए। जो वाटर बाउंड मैकेडम का अल्टरनेटिव है, दिस इज अ वेट मिक्स मैकेडम। द डिफरेंस इज इट इज अ फास्टर टाइप, ये हम देखेंगे क्या होता है वेट मिक्स मैकेडम। Then now with the passage of time we have lot of fly ash available. So if you add lime and fly ash and stabilize the soil, that can be used as a sub base. So lime, fly ash, stabilize soil, sub base. I am sure ये कुछ नाम आपने क्रशर रन मैकेडम, अब ये शायद नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने, क्रशर रन मैकेडम। व्हाट इज ए क्रशर? क्रशर सबको पता है। क्रशर जो होता है जहाँ पे बड़े पत्थरों को ला के ब्रेक करते हैं और उससे एग्रीगेट बनाया जाता है जो विच इज एंगुलर और सब एंगुलर टाइप एंड डिफरेंट साइजेस में सेग्रीगेट करके देन फ्रॉम देयर you take it for construction for a concrete or for road, so that is called a crusher plant. तो crusher plant में क्या प्रोसेस होता है कि ब्रेकिंग के बाद बड़ी बड़ी सीव्स लगी रहती हैं, तो वहां से छन्नी होने के बाद वो अलग अलग साइज में कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम द बेल्ट ऑन द बेल्ट एंड सीव तो बहुत सारा मटेरियल बाहर गिर जाता है नीचे जमीन पर, राइट। तो वो अब वो मटेरियल ऐसा है कि उसको आप कहीं फिट नहीं कर सकते कोई साइज में, आप उससे उसको कहो जी मैं 20 mm वाली में पिक करके, वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट। तो जितना मटेरियल उसका वेस्ट होके छन्नी से या बेल्ट से जाता है नीचे गिर जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली क्रशर रन मटेरियल। उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको यूज करके उसका एक बेस कोर्स बना सकते हैं, that is called crusher run material. Brick soling. Brick soling is अभी शायद इससे तो आपको हंसी आएगी कि ब्रिक सोलिंग कहाँ से आ गया, बट ब्रिक सोलिंग ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और जो इंडियन रोड कांग्रेस है ये उनकी गाइडलाइन स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मेरी अपनी नहीं है। ब्रिक सोलिंग में क्या है, ब्रिक सोलिंग में ब्रिक्स को वर्टिकली रखा जाता है। जैसे हमने अभी कहा कि रोड इज नॉट नेसेसरली ए हाईवे लाइक एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, रोड कैन बी गिविंग कनेक्टिविटी टू सम स्मॉलर एरियाज जहाँ पे आप खर्चा ज़्यादा नहीं करने की जरूरत, सो यू कैन डू द ब्रिक सोलिंग एज वेल। ब्रिक सोलिंग में नॉर्मली हम ब्रिक को वर्टिकली रख के उसको, इफ दे आर वेरी वेल बर्न्ड ब्रिक्स, अभी भी आप देखोगे कि कुछ पुराने गांवों में अभी भी एंट्रेंस पे मेनली हमने देखा है जहाँ पे चौपाल लगती हैं तो ब्रिक सोलिंग है, बहुत पुरानी है। तो ब्रिक इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, पहले जो ब्रिक्स होती थी बहुत वेल बर्न्ड ब्रिक्स, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। उसको जब आप वर्टिकली डाउन रख देते हैं ओवर ए बेस तो और इंटरलॉकिंग हो जाती है तो ब्रिक जल्दी से टूटती नहीं है, अगर अनलेस यू नो द मूवमेंट इज ऑफ हैवी ट्रैफिक। तो so brick soling can be one alternative. Though then you have stone set pavement. Stone set pavement में क्या होता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ पत्थर है, स्टोन्स है, हिल्स में होता है बहुत, तो स्लैब्स को यू कैन जस्ट ड्रेस देम प्रॉपरली एंड प्लेस देम टुगेदर एंड दैट कैन एक्ट एज ए पैसेज फॉर द मूवमेंट. And then we have got some new technologies, patents, chemicals are there, which are very effective, which are very bonding agents. They are the bonding agents. तो
उसमें क्या है, उनके अपने फिर डिजाइन्स हैं, तो you can use them in the granular base course also, and also in the soil subgrade. So using those you can have different outcomes.